Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 6, and the name of this chapter is Plant Kingdom. In this chapter, my dear student, we are going to see the following topics. Okay, so what are the feature of plants? We are going to discuss here. Then we are also going to see what is the root system, and on the another hand side, what is shoot system. Okay, then we eat roots of some plants, absolutely right. Okay, we also eat the roots of some plants. Then which part of the plant is considered as a reproductive part of the plant? Then in what way we are going to use flower? So all these topics we are going to cover in your chapter, so come with me and let's explore the chapter. Plants need a variety of things to live, grow, and reproduce. Plants need soil, air, and water to live. My dear students, see, plants need a variety of things. Okay, plants need a variety of things like they live, they grow, they reproduce. Okay, and as well as for their own living, for their own reproduction, for their own growth, they also need soil, air, and water. Okay. Plants make their own food through a process called photosynthesis. Water molecules and carbon molecules combine and form oxygen and glucose to feed plants. Without water, plants cannot make food. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और जब वो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. ठीक है, वाटर में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और जो कार्बन में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये ऑक्सीजन बनाते हैं और इसी ऑक्सीजन से ग्लूकोज प्लांट्स अपने लिए बनाते हैं. अगर पानी नहीं है तो प्लांट्स अपना खाना भी नहीं बना सकते. How much water a plant needs depend on the climate, the age of the plant, the type of plant and the environment of the plant. Getting too much or too little water can kill a plant. देखिए, पानी कितना चाहिए एक प्लांट को, ये डिपेंड करता है प्लांट किस जगह पे है, कैसा वहां का क्लाइमेट है. ठीक है, तो उन्हें किस तरीके का मतलब कितना उनको वाटर सप्लाई देना है. अगर आप बहुत कम पानी देते हो या बहुत ज्यादा पानी दे देते हो प्लांट में, तो वो भी प्लांट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है. Now, my dear student, we are going to see the parts of a plant. Okay, so we are going to discuss the parts of the plant. See, a plant is mainly divided into two parts, a root system and a shoot system. My dear student, plant is divided into two parts, a root system and a shoot system. Now, what is the meaning of root and shoot? Let's see. The part that grows below the soil is called the root. The part that grows above the soil is called shoot. रूट वो होता है जो जमीन के अंदर ग्रो करता है. ठीक है, उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं. और जो जमीन के ऊपर जो हिस्सा ग्रो करता है प्लांट का, उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. तो रूट सिस्टम मीन्स व्हाट द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड टू ग्रो अंडर द सॉइल. ओके, इट्स कॉल्ड रूट सिस्टम. And the portion of the plant which is grown above the soil is called as shoot system. ठीक है, तो ये देखिए, this is a diagram of root and shoot system. Okay, now we are going to discuss root system in detail. See, the root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous. It grows under the ground and is the non-green part of plant. जो root होता है वो जमीन के अंदर आता है. ठीक है, प्लांट्स का इसमें बहुत ही ज्यादा ये थिक होता है, काफी ये फैला होता है और ये बुशी होता है और ये ग्रीन कलर का नहीं होता है. The root helps to fix the plant to the soil. It helps the plant absorb water and minerals from the soil. It stores extra food material from the plant. जो रूट होता है, रूट ही प्लांट को पकड़ के रखता है सॉइल में. ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रूट सिस्टम है ना, वो प्लांट्स के लिए जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं सॉइल के अंदर, वो उनको एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स में. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, हियर यू कैन सी दिस इज द रूट सिस्टम डायग्राम. Now, we eat roots of some plants. It's absolutely right. My dear student, we also eat root. Okay, we also eat some roots of the plant. Like you have just read that one of the function of the root in a plant is to store food. अभी आप लोगों ने पढ़ा root का काम क्या है, खाने को store भी करना. Vegetables like carrots, radish, yam are swollen roots. These store food in a form of carbohydrates. We eat them as vegetables. Carbohydrates give us energy. तो बहुत से वेजिटेबल्स जैसे कैरेट है, रेडिश है और यम है, ये क्या होते हैं, ये हमारे प्लांट के स्टेम, प्लांट के ये रूट होते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं. ठीक है, बट ये बहुत ही मोटे फॉर्म में होते हैं, बहुत ही स्वेलन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, ये अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं और जब हम इनको खाते हैं, जब हम कैरेट खाते हैं, रेडिश खाते हैं, यम खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं. और कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देना.
So this is all about our root system. Now we are going to see the shoot system of the plant. The shoot of a plant consists of a stem, branches, leaves, फ्रूट्स एंड फ्लावर. रूट में सिर्फ एक ही पार्ट होता है, रूट. देखिए शूट में क्या होता है, जो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, फ्लावर्स होती हैं. ठीक है. इट ग्रोज अबव द ग्राउंड, इट इज ग्रीन इन कलर. और जो शूट सिस्टम होता है ये ग्रीन कलर का होता है. ठीक है. जो रूट है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, शूट सिस्टम ग्रीन कलर का होता है. The shoot of a plant conducts water and minerals absorbed by the root to all the other parts of the plant. अच्छा, रूट ने जितना भी खाना स्टोर किया हुआ है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स उसने सॉइल से एब्जॉर्ब किए हैं, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया. अब उनको फ्लावर तक, फ्रूट तक, ब्रांचेस तक, लीव्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इस शूट सिस्टम की होती है. ठीक है. तो शूट सिस्टम उन सबको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में एक्सपोर्ट करता है. It transports food made by the leaves to all parts of a body, all parts of the body of the plant. It bears the branches, leaves, flowers and fruits of the plant. ठीक है. ये खाना भी सप्लाई करता है, जो लीव्स खाना बनाती है ये खाना भी सप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है. और साथ ही साथ शूट अपने ऊपर ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को कैरी करता है. When you look at the plant, the first thing you notice are its leaf. आप जब भी कोई प्लांट देखते हो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? आप सबसे पहले नोटिस करते हो प्लांट के लीफ को. The flat and broad part of leaf is called the leaf blade or leaf lamina. Okay? अगर कोई बहुत ही ज्यादा फ्लैट और बड़ी पत्ती है उसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लामिना. जो लीफ होती है ये ब्रॉड, जो आपकी पत्ती है अगर वो ब्रॉड है, ठीक है, और अगर ये आपकी पत्ती, अगर किसी ट्री की पत्ती लीफ है या फ्लैट है पूरा का पूरा, तो इसे हम कहते हैं लीफ ब्लेड या लीफ लामिना. यही पर माय डियर स्टूडेंट इट कंटेन्स टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है. इसी लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. क्या कहते हैं? स्टोमेटा. Leaves take in and give out air through this pore. They help the plants to breathe. अच्छा, ये स्टोमेटा का क्या काम है? तो जो पत्तियों में जो फ्लैट और ब्रॉड पत्तियां हैं इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं. इसी स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं. ठीक है. Take a leaf and look at it against a light. You will see a network of fine tubes of veins. आप एक काम कीजिए, आप एक पत्ती को लीजिए, आप उसको या तो ब्राइट सनलाइट में देखिए या फिर किसी लाइट के सामने लेके जाइए और उसको देखिए. तो जब आप देखोगे ना तो आपको खुद दिखेगा कि पत्तियों के अंदर काफी पतली पतली थिन वेन्स या लाइंस बनी हुई हैं. ठीक है. So this is all about our shoot system. Now we are going to see the parts of a flower. The parts of a flower. In the middle of a leaf is the main vein known as the midrib. जब आप पत्तियों के बीच में देखोगे ना तो पत्तियों के जो एकदम बीच वाली रिब होती है उसको हम कहते हैं मिड रिब. ठीक है. इट ब्रिंग्स वाटर टू द लीव्स एंड कैरीज फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो मिड रिब का काम होता है ये पत्तियों में पानी लेकर आता है और खाना सप्लाई करता है पूरे पार्ट में. ठीक है. लीफ कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल. अच्छा, सारी हम लोग खाना और पानी को लीफ, खाना और पानी जब भी हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के लिए, हम लीफ को ही क्यों मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि लीफ के अंदर एक ऐसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. इसी क्लोरोफिल की वजह से तो खाना पकता है. ठीक है. देखिए, a plant make its food in the leaf using sunlight and chlorophyll. देखिए, तो जो लीफ खाना बनाते हैं ये किस किस को हेल्प यूज करके बनाते हैं? ठीक है. तो जब लीव्स खाना बनाती हैं तो लीफ सनलाइट और इसी क्लोरोफिल को यूज करके खाना बनाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो जो इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी जिस प्रोसेस की हेल्प से लीव्स खाना बनाती हैं उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Plants use this food to live and grow. That is why the leaf of a plant is very important. We also eat green leaves of plants. ठीक है. जो प्लांट्स होती हैं वो हमें जो प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स इसी लीफ के थ्रू जो खाना उन्हें दिया जा रहा है, जो पानी उन्हें दिया जा रहा है, इसी से तो वो जीते हैं और ग्रो करते हैं. ठीक है. इसीलिए लीफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर लीफ नहीं होगा तो प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा. ठीक है. वैसे हम लोग ना बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स को भी खाते हैं. जैसे the flower of a plant is the most attractive part of a plant. Some flowers even have a beautiful smell. ठीक है. अब बारी आती है फ्लावर की. लीव्स का तो हमने देख लिया. ठीक है. अब बारी आती है फ्लावर्स की. फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स एक प्लांट को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लुक देते हैं. ठीक है. बहुत सारे फ्लावर्स की बहुत अच्छी स्मेल भी होती है. अ फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट. फ्लावर के 4 मेन पार्ट होते हैं. क्या क्या नाम है उनका? पेटल, सेपल्स, स्टेमन एंड कार्पल. ओके.
Okay, my dear student, flower is also divided into four parts named as petals, sepals, stamen and carpel. The flower is the reproductive part of the plant. अच्छा, फ्लावर का क्या काम है? अगर लीफ खाना बनाता है तो जो फ्लावर है ना वो रिप्रोडक्शन का काम करता है प्लांट के लिए, ठीक है? इट चेंजेस इनटू फ्रूट. अच्छा, रिप्रोडक्शन किस फॉर्म में करता है? ये फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? जैसे देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है? फ्लावर का मेन काम क्या है? रिप्रोडक्शन करना और सीड्स के फॉर्म में, ठीक है? So here you can see this is the part of the leaf, okay? And here you can see the life cycle of deciduous tree. Flowers develop from buds and after pollination and fertilization transform into fruits which contain seeds. जो flowers है सबसे पहले वो छोटे से बर्ड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को क्रॉस करते हुए ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है? और ये फ्रूट सीड को अपने अंदर लेके चलते हैं. सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट. अ सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट. अच्छा, सीड क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि सीड में एक छोटा सा बेबी प्लांट भी होता है. व्हेन अ सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर, टेम्परेचर एंड सॉइल, इट ग्रोज इनटू अ टाइनी प्लांट, ठीक है? तो जब इस सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर, वाटर और सनलाइट मिलता है तो ये एक टाइनी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक ऑल लिविंग थिंग्स, प्लांट ब्रीथ, फीड, ग्रो एंड गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह, मे बी एनिमल्स, मे बी ह्यूमन बींग्स, इन सब की तरह प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं, वो खाना बनाते हैं, वो ग्रो करते हैं और साथ ही साथ वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को भी बाहर निकालते हैं. दे कैन ऑल्सो मेक सर्टेन मूवमेंट्स एंड आर सेंसिटिव टू सर्टेन स्टिमुली, ठीक है? जिस तरीके से हम लोग मूवमेंट करते हैं उसी तरीके से फ्लावर्स भी मूवमेंट करते हैं. नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है? चलो देखते हैं. Most flowers exhibit a beauty and variety in form, color, pattern and aroma. बहुत से जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं. किसी का कलर बहुत ब्यूटीफुल होता है, किसी का स्मेल बहुत ब्यूटीफुल होता है, तो किसी की डिजाइन बहुत ब्यूटीफुल होती है. दिस फ्लावर्स प्रोवाइड ब्यूटी एंड जॉय टू ह्यूमंस. और इन फ्लावर्स को देख के ना हम लोग को बहुत मजा आता है, ठीक है? अच्छा, अगर आप कोई फ्लावर को देखते हो तो कितना अच्छा लगता है ना खुद को देख के. People therefore grow flowers around their homes or buy flowers from florists. इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब भी हमारे घर में कोई ओकेजन होता है हम लोग हमेशा फ्लावर्स लेके आते हैं. नो सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट फ्लावर. हम क्यों फ्लावर्स लेके आते हैं? क्योंकि हमारे घर में कोई भी सेलिब्रेशन हो बिना फ्लावर्स को कभी पूरा नहीं होता है. We use flowers on all occasions like birthday, wedding, festivals. हमारे घर में कोई भी ओकेजन हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे वेडिंग हो या कोई भी फेस्टिवल हो, we always use flowers. Flowers are used as temple offering in garlands, decorating, etc. Even flowers को temples में offer करने के लिए भी use किया जाता है. Through ages, women in many societies have used flowers to adorn themselves. काफी पहले से जो ladies होती हैं वो खुद को beautiful खुद को और ब्यूटीफुल शो करने के लिए फ्लावर्स का यूज करती हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट some of the use of flowers. Okay, flowers provide several important food and spices. फ्लावर्स सिर्फ हमें स्मेल ही नहीं देता है, फ्लावर्स सिर्फ और सिर्फ हमें ब्यूटिफिकेशन ही नहीं देता है माय डियर स्टूडेंट. इवन फ्लावर्स हमें बहुत सारा खाना भी देता है और बहुत सारे स्पाइसेस भी प्रोवाइड करता है हमें. फ्लावर वेजिटेबल इंक्लूड ब्रोकली एंड कोलीफ्लावर. वो हमें खाना किस फॉर्म में देते हैं? वो फ्लावर जो होते हैं ना अपने वेजिटेबल जो है अपने फ्लावर के फॉर्म में हमें खाना देता है. जैसे ब्रोकली और कोलीफ्लावर, ये क्या है? ये वेजिटेबल के फ्लावर्स हैं. The most expensive spice is saffron. Okay, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में माय डियर स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्पाइस है वो है सैफरन, ठीक है? तो सैफरन जो होता है इसमें क्या है? ड्राइड स्टिग्मास ऑफ द क्रोकस फ्लावर, ठीक है? ये एक ड्राइड क्रोकस फ्लावर होता है. क्लोव इज अनदर पॉपुलर स्पाइस विच इज एक्चुअली अ ड्राइड बर्ड, ठीक है? क्लोव, लॉन्ग भी आप देखते हो ये भी एक तरीके से फ्लावर बर्ड है पर वो सूखा हुआ फ्लावर बर्ड है. सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर फॉर परफ्यूम. कुछ फ्लावर्स को यूज किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए. द ऑयल ऑफ रोज, जैस्मीन, लेवेंडर, थाइम, रोजमेरी एक्सेट्रा यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स. रोज फ्लावर से, लेवेंडर के फ्लावर से, जैस्मीन फ्लावर, थाइम या रोजमेरी के फ्लावर से ऑयल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? और ये ऑयल्स कहाँ यूज होते हैं? परफ्यूम बनाने में यूज होते हैं. The nectar of flowers is used by bees to make honey. ठीक है? अच्छा, bees क्या करते हैं? फ्लावर्स के नेक्टर को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे वो हनी बनाती हैं. Many flowers are also used in medicines. Flowers can also be made into herbal tea. बहुत से फ्लावर्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिन के लिए भी यूज किया जाता है. और साथ ही साथ आप लोगों ने हर्बल टी का नाम तो सुना ही होगा अपने घर में. उन हर्बल टीज में भी फ्लावर्स का यूज होता है. ड्राइड फ्लावर्स सच एज कैरिसेंथेमम, ठीक है?
बहुत सारे सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं, जैसे एक है क्यारिसैंथेमम, रोज, जैस्मिन एंड chamomile are infused into tea both for their fragrance and medical properties। तो बहुत सारे ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, जैसे आपका क्यारिसैंथेमम है, रोज है, जैस्मिन और कैमोमाइल है, इनको टी में इन्फ्यूज किया जाता है। तो जब आप इनको टी में इन्फ्यूज करते हो, इनका बहुत अच्छा एकदम फ्रेग्रेंस आता है और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। Sometimes they are also mixed with tea leaves for added fragrance. Okay. Now keep in mind fact: plants produce their own food. Absolutely right, my dear student. Plants अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए ये producers की कैटेगरी में आते हैं। The forests are looked after by the government. हमारा जो फॉरेस्ट है इसको गवर्नमेंट देखते हैं, ठीक है। So my dear student, this is all about the chapter. Now come with me and let's see the wrap up of this chapter. Vegetables like carrots, radish, yam are swollen roots. Absolutely right. The shoot of a plant consists of the stem, branches, leaves, fruits, and flowers. Roots help in holding the plant firmly in the soil. The orchard is a big area that is planted with fruits and nut tree. Orchard क्या होता है? बहुत ही बड़ा एरिया है जहां पे आप फ्रूट्स को और ट्रीज को उगाते हो। Leaf contains a substance called chlorophyll. The flower of a plant is the most attractive part of a plant. Absolutely right. Plant का सबसे ज़्यादा attractive portion कौन सा होता है? Flower होता है. The most expensive spice is saffron, which consists of the dried stigmas of the crocus flower. Dried flowers such as chrysanthemum, rose, jasmine, and chamomile are infused into tea. Okay. Now, fact corner. In time of drought, the poor suffer because of scarcity and high prices of food. Cheap substitutes like टापियोका हेल्प रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन ऑफ द पुअर। जब बाढ़ आती है, सॉरी, जब सूखा पड़ता है, ठीक है, जब सूखा पड़ जाता है, हर तरफ पानी नहीं है, खाने की भी स्कैरसिटी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल सफर करते हैं? जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम माय डियर स्टूडेंट वो क्या करते हैं? वो सब्सटीट्यूट खोजते हैं, क्योंकि खाने का दाम बढ़ चुका है, पानी ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं जो उनको सस्ते में मिल जाए। तो जैसे टापोकिया है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? इससे वो अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर सेक्शन। बट बिफोर प्रोसीडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ योर क्वेश्चन आंसर सेक्शन, माय डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ OMR शीट। OMR शीट क्या है? ये एक ऐसा शीट है जिसपे आपको अपने आंसर मार्क करने होते हैं। इसमें 3 या 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और सही वे है आंसर मार्क करने का, जो सर्कल है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन है, उस सर्कल को पूरा कलर करेंगे। अगर आप टिक करते हो, क्रॉस करते हो, हाफ सर्कल को कलर करते हो, या कलर किए बिना सर्कल को छोड़ देते हो, ये चारों क्या है? रॉन्ग वे ऑफ कलरिंग योर, रॉन्ग वे ऑफ आंसरिंग योर क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड OMR शीट। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। पहला क्या करना है हमें? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द फ्लावर चेंजेस इनटू अ प्लांट, सीड, फ्रूट, ठीक है। तो फ्लावर किसमें कन्वर्ट होता है? ये रहा, देखिए, इट चेंजेस इनटू फ्रूट, ठीक है, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्टर ऑफ फ्लावर इज यूज्ड बाय द बीज टू मेक हनी। Now filling the blanks. Getting too much or too little water, ठीक है, water can kill a plant. The root of a plant may be long and thick or dash and dash. तो देख लीजिए, okay, the root of a plant may be long and thick or bushy and fibrous, ठीक है। तो bushy और fibrous इसका आंसर है, bushy, fibrous. Dash gives us energy. क्या हमें एनर्जी देता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये रहा इसका आंसर, देखिए, carbohydrates give us energy. Carbohydrates. Now leaves contain a substance called stomata है। leaves के पास stomata होता है जिससे वो breathe करते हैं, breathe out करते हैं। देखो, leaves contain a substance known as, sorry, chlorophyll. I'm really very sorry. leaves contain a substance called chlorophyll. okay, जिससे वो खाना पकाते हैं, ठीक है, chlorophyll. ठीक है, चलो। Dash are protected inside fruit. Seeds are protected inside fruits. देखिए ये रहा, seeds are protected inside fruit.
No celebration is complete without flowers. Dash is another popular spice which is actually a dried. तो ये इसका आंसर आपका क्लोव है. ये देखिए, क्लोव is another popular spice which is actually a dried bird. ठीक है? So you are going to write here clove. Clove is another popular spice which is actually a dried bird. Okay. Dash are our great wealth. Forest. Forest our great wealth. Now, see, answer the following questions in short. What is called the root? Root क्या होता है? ये रहा इसका आंसर देखिए. Okay. It grows under the ground. Okay. अब उसको ऐसे लिखोगे. What are called roots? The part of the plant which grows under the soil. Okay, the part of the plant which grows under the soil. What is called shoot? अब shoot क्या होता है देख लीजिए, जो soil के ऊपर है, ठीक है, उसे हम shoot कहते हैं. देखिए, okay, the shoot of the plant consists of the stems, branches, leaves, fruits and flower. It grows above the ground. Okay. So the part of the plant which grows above the ground includes stem, branches, leaves, etc. Okay. Now, what is called the leaf blade? हम leaf blade किसको कहते हैं देख लेते हैं. Okay, ये रहा the flat and broad part of the leaf. Okay, so the flat and broad part of the leaf. Okay, the flat and broad part of the leaves are called leaf blade. Full stop. Okay, what is called stomata? अब stomata क्या होता है देख लो, ये रहा इसका आंसर. Okay. Contains tiny leaves, contains tiny pores. Okay, leaf contains tiny pores. Leaves contains tiny pores are called stomata. Okay. What is known as midrib? Midrib किसको कहा जाता है देखो, इसका आंसर यहां पे है. In the middle of a leaf is the main vein known as midrib. Okay, in the middle of the leaf. Full stop. Okay, fine. चलिए, now answer the following questions. Why do plants need water? Plants को पानी क्यों चाहिए? तो इसका आंसर ये है आपके पास. Plants need water because plants make their own food through the process called photosynthesis. Okay, and in this process water molecule and carbon molecules combine to form oxygen and glucose to feed plants. ठीक है, ये है आपका आंसर. फिर दूसरा क्या है क्वेश्चन आपका बी. What does the root of a plant do? Root क्या काम करता है? तो इसका आंसर इधर है आपका, देखिए. Okay, see. Okay, the root helps to fix the plant to the soil. It helps the plant absorb water and minerals from the soil and it stores extra food material for the plant. ठीक है, बी का आंसर ये है आपका. Now see, what are the things that are the shoot of a plant consist? Describe them in brief. Shoot के पास क्या क्या चीजें होती हैं? तो ये रहा इसका आंसर, देखिए. The shoot. Okay, so the shoot of a plant consists of the stem, branches, leaves, fruits and flower. Okay, which grows above the ground and green in color. The shoot of a plant conducts water and minerals absorbed by the roots to all the other parts of the plant. Okay, and transports
food made by leaves to all the parts of the body of the plant. It bears the branches, leaves, flowers and fruits of the plant. ठीक है, आप ये इसका आंसर लिखेंगे. फिर डी आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, देखिए. ओके, तो फोटोसिंथेसिस आप इसका आंसर ये लिखेंगे, लीव्स कंटेन अ सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल. अ प्लांट मेक इट्स food in the leaves using sunlight and chlorophyll. This process is known as photosynthesis. ठीक है, चलिए. फिर ई है, हाउ डज अ फ्लावर चेंज इनटू अ फ्रूट. फ्लावर से फ्रूट कैसे बनता है, तो इसका आंसर इधर है. Okay, the flower is the reproductive part of the plant. It changes into fruit. Okay, and it produces seeds. Flowers develop from birds and after pollination and fertilization transform into fruits which contain seeds. ये है आपका. फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्लावर. फ्लावर का क्या क्या यूज है, तो देखो ये रहा यूजेस ऑफ फ्लावर्स, देख लीजिए. We use flowers on all occasions like birthday, wedding, festivals, etc. Okay, flowers are used as temple offerings in garland decorating. Okay, flowers are also used by women in many societies to adorn themselves. Okay, flower provide us food and spices like they provide broccoli and cauliflower. Okay, as well as they provide spices to us like saffron, like clove. Okay, clove, and they also provide the most expensive spice in the world that is called as saffron. Flowers are also used to make perfumes, oils. ठीक है, ये सारे इसके ऑप्शन आंसर हैं आपके. चलिए, नाउ द एक्टिविटी टाइम. इसमें क्या करना है, डिस्कस हाउ रूट्स hold the plant firmly on the ground. This prevents soil erosion. Hence, we need to stop cutting and plant more trees. You all know, my dear students, plant को कौन पकड़ के रखता है जमीन में, roots. ठीक है, इसीलिए my dear student आपको क्या करना है, आप अपने क्लास में ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोगों को सॉइल इरोजन रोकने की जरूरत है. और सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जब आप पेड़ को काट देते हो ना, तो जानते हो जब फ्लड आता है, ठीक है, तो अब वहां पे तो कोई प्लांट है नहीं उस जगह को होल्ड करने के लिए, तो क्या होता है, वो पूरा का पूरा एरिया जो भी उसके मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब पानी के साथ बह के चले जाते हैं. ठीक है, तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स हमें प्लांट्स को नहीं कट करना है, फॉरेस्ट को कट नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉरेस्ट कट करते जाओगे तो सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाएगी. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने क्लास में डिस्कस करनी है. ओके, Okay, my dear students, so this is all for chapter number 6. In this way, we have completed your chapter. Now, my dear student, here comes your work. Just go thoroughly through this chapter and complete all the leftover exercise. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.